Good morning, student. Today I am going to explain chapter 16, data handling. So data is a collection of fact in the form of numerical figures. And frequency distribution table, a table showing the frequency of various observation is called frequency distribution or frequency table. And range, the difference between the highest observation and the lower observation is called the range. Next, representative value or measure of central tendency. So there are three tendency: central tendency, mean, median and mode. So one by one. First, mean formula of mean, sum of all observation divided by number of observation. Median, when the observation of the data are arranged in ascending or descending order, the middle observation is called median. जो middle वाला observation होगा उसको बोलेंगे median. And formula of median, there are two formulas for even number and for odd number. So first one is for odd, when n is odd. N means number of observation, counting. N plus 1 divided by 2, 2th observation. N plus 1 divided by 2, 2th observation if n is odd. And when n is even, then formula n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation. And mode, the observation which occurs maximum number of times in the given data is called mode of the data. And the probability formula is number of outcomes favorable to E upon total number of outcomes. Probability means possibility, कोई भी इवेंट होने की क्या पॉसिबिलिटी है, मीन्स उसके कितने चांस है. जैसे कि अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है एंड टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती, क्या चांस है उसके. नाउ एक्सरसाइज 16.1, फर्स्ट क्वेश्चन. The number of rooms in 25 houses of a locality is as given below. 4, 3, 2 given data. This is the data, collection of facts. इसमें आपको 25 हाउसेस के डेटा गिवन है. किसी में 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम एंड 6 बेडरूम. टोटल 25 हाउसेस के information given है. First part is arrange the above data in ascending order. You have to write the given data in ascending order. That means 1, आपको इसको ऑब्जर्व करना है. मिनिमम वैल्यू इज 1. सो हाउ मेनी टाइम्स 1 comes? 1, 2 and 3. So 1, 1, 1. Then observe 2. 2, how many times 2? This type write the given data in ascending order, first part. And the second part is find the range. Formula of range is maximum observation minus minimum observation. अपने यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला था, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन. सो जो ये डेटा गिवन है उसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है 6 एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 1. So range is maximum observation minus minimum observation, that is 5. Third part is construct frequency distribution table for the above data. जो डेटा गिवन है उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले फर्स्ट कॉलम इज नंबर ऑफ रूम्स. सो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रूम्स तक हैं. एंड second column is tally mark and the third column is number of houses. So first observe 1. How many times 1? 1, 2, 3. So 1, 2, 3 and write 3. Number of houses 3. That means 3 houses ऐसे हैं out of 25 जिसमें 1 room है. 1 room वाले 3 houses हैं. And 2
how many times 2 occur? 1 2 3 4, 4 times. So 1 2 3 4, 4 times. 3, count here 3, how many times? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 times 3 occurs. So in tally marks 1 2 3 4 and 5, 5 को हम लिखते हैं इस टाइप से 1 2 3 4 and this one is 5, 6 7 8. So 8 and next 5. How many times 5 occurs? So counting is 3. So write here 3. 6 occur 2 times. Write here 2. So here total add this one, total 25 houses. So match the data 25. Next part is find the number of houses which have 4 or more than 4 rooms. 4 room and more than 4 room. More than means 5 and 6. So 4 and more than 4 rooms is 4 is 5 plus 3 plus 2. So 5 plus 3 plus 2 is 10. And the fifth part is draw bar graph to represent the above data. जो डेटा गिवन है उसके लिए हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. बार ग्राफ में हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस. दिस वन इज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो फर्स्ट हियर नंबर ऑफ रूम्स, जो फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ रूम्स, उसको हमने एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ रूम्स. एंड द सेकंड जो कॉलम था नंबर ऑफ हाउसेस, जो ये वाला कॉलम है थर्ड जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो हमने वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ हाउसेस. सो 1 नंबर ऑफ रूम्स 1, देन नंबर ऑफ हाउसेस 3. सो हियर नंबर ऑफ रूम 1 को वाई एक्सिस में वर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 8 तक लिया बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पर 8 है मैक्सिमम. सो टेक अप टू 8. 1 को लिया है नंबर ऑफ रूम्स वाले हैं एक्स एक्सिस में रूम्स है नंबर ऑफ रूम्स. तो फर्स्ट रूम में कितने हैं? नंबर ऑफ रूम्स 1 है एंड नंबर ऑफ हाउसेस इज 3. सो टेक 3 अप टू 3 बार. इसको बोलेंगे बार, जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं इसे रिप्रेजेंट करते हैं बार. सेकेंड नंबर ऑफ रूम्स 2, देन नंबर ऑफ हाउसेस 4. सो हियर 2 रूम नंबर number of rooms and here 4 up to 4. Number of rooms 3 and number y in y axis number of houses 8. Number of rooms 4 and number of houses 5. Number of rooms 5 and number of houses is 3. Number of room is 6 and number of houses is 2. So this is your bar graph. Question number 2. The adjoining bar graph shows the number of books sold by the bookstore during 5 consecutive years. 5 consecutive year is 2008, 2009, 2010, 11 and 12. और इसके नंबर ऑफ बुक्स कितनी सेल की ड्यूरिंग दिस ईयर, उसके लिए आपको ऑलरेडी बुक में आपको ये ग्राफ गिवन है. आपको ओनली ऑब्जर्व करना है एंड इसके जो क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर करना है. ग्राफ आपको ऑलरेडी, इसमें ग्राफ आपको नहीं बनाना है, इसमें ऑलरेडी ग्राफ गिवन है. सो फर्स्ट पार्ट इज अबाउट how many books were sold in 2008, 2009 and 2011 years. आपको 2009, 8, 9 and 11 आपको इसको ऑब्जर्व करना है. 2008 में कितनी बुक सोल्ड हुई वो बताना है, 2009 में कितनी सोल्ड हुई एंड 2011. 1 by 1 आपको डेटा देखना है. तो जब आप इसको ऑब्ज़र्व करोगे आप स्केल से, जैसे आपने स्केल से ऑब्ज़र्व किया कि ये इस टाइप से आपने जब देखा तब आपको आएगा कि 2008 में हुई है 140 बुक्स सोल्ड
and book were sold in 2009 360 and books were sold in 2011 180. आपको इसको ऑब्जर्व करना है. 9 में जैसे 2009 के लिए आपको चेक करना है तो वाई एक्सिस पे आप इसको मेज़र करो कि वाई एक्सिस पे अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज ये बुक में लाइंस तो गिवन नहीं है बट आप इसको मेज़र करोगे अप्रॉक्सीमेट 360 एंड 2011 के लिए आपका आएगा 180. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 200 students of 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. जो डेटा गिवन है उसमें फेवरेट कलर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक सर्वे में उनसे पूछा गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेवरेट कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज. तो रेड कलर को चूज़ करने वाले 43 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रेड कलर को उनका फेवरेट कलर था. 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका फेवरेट कलर था ग्रीन. 55 स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर, 49 स्टूडेंट्स लाइक येलो कलर, 34 स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंज कलर. अब इसके लिए आपको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन अ बार ग्राफ. बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. सो इन एक्स एक्सिस favorite color, first column is favorite color, take in x axis favorite color and in y axis number of students. So red color, green, blue, yellow and orange. So first red color, how many students? 43. So in y axis take scale 1 unit as 10 students. 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट. एक्स एक्सिस पे हमने लिया ये यूनिट. 10 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट. सो रेड कलर 43. सो 40 एंड अबव 43 लाइन्स 41, 42 एंड 43. सो 41, 2, 3, 43. एंड ग्रीन कलर 19. 19 जस्ट 20 के एक जस्ट नीचे वाली लाइन होगी 19. सी blue color is 55, exact the mid of 50 and 60, 55. yellow color is 49. 49 means 50 वाली जो लाइन उसके जस्ट एक नीचे वाली जो लाइन होगी वो होगी 50, 49. एंड ऑरेंज इज 34. सो आफ्टर 30 10, 20, 30, 31, 32, 33 and 34. So this is the bar graph. And answer the following question with the help of the bar graph. bar graph की हेल्प से आपको ये आंसर करना है. Which is the most preferred color? जिसका बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है वो होगा most preferred color. ठीक है, ब्लू इज मोस्ट प्रिफर्ड कलर. सेकेंड, विच इज़ द लीस्ट प्रिफर्ड कलर? सबसे छोटा ग्राफ देखो, ग्रीन. ग्रीन कलर जो है वो सबसे कम लोगों को का फेवरेट कलर है इन सर्वे. सो लीस्ट प्रिफर्ड कलर इज ग्रीन. हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ऑल? टोटल कितने कलर्स हैं? बहुत ईजी है, जो ऑलरेडी आपको गिवन है. देयर आर 5 कलर्स एंड नेम रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज. क्वेश्चन नंबर 4 इज sale of English and Hindi books in the 4 consecutive year is given below. Years दिया 2008, 9, 10 and 11. 4 years में इंग्लिश एंड हिंदी की बुक कितनी सेल हुई? 350 इंग्लिश की हुई 2008 में एंड हिंदी की हुई 500. 2009 में 400 इंग्लिश एंड 525 हिंदी. इन 2010 and 2011 data given. So draw the double bar graph to represent the above data and answer the following. First of all draw double bar graph और उसके बाद आपको आंसर करना है. So in x axis take years 2008, 2009, 2010 and 11 years in x axis, and in y axis number of books. So 2008 में इंग्लिश की बुक सोल्ड हुई हैं 350. तो इन वाई एक्सिस 100 बुक्स इक्वल टू 1 यूनिट. 1 यूनिट को हमने सपोज किया है 100 बुक्स.
100, 200, 300, 400, 5, 6 and up to 700. So in 2008, English book sold 350. So 100, 200, 300 and mid of 3 and 400 is 350. And English book, Hindi book 500, so up to 500. सेम एज दैट मीन्स इसको आपको एक ब्लॉक में, जैसे हमने ये वाला कंप्लीट ब्लॉक बनाया था, डबल बार ग्राफ में एक बार के अंदर आपको 2 बार बनाने हैं. ठीक है, स्पेस सेम होगा. यहाँ पर जैसे आपने ब्लैंक फर्स्ट जो है वो स्पेस खाली दिख रखा है, उसके बाद 1 बार जहाँ पर बनना था वहाँ पर आपको 2 बार्स ड्रॉ करने. सेम इन 2009 400 इंग्लिश बुक एंड हिंदी बुक 525. 525 means 500, 510, 520 एंड 530. तो जो 20 और 30 के जो मिडिल वाला होगा वो होगा आपका 25, 525. क्लियर है? वो एग्जैक्टली ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट होगा दोनों के बीच में 20 एंड 30. सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में आपका बनेगा 525. And next, same as 2010 and for 2011. And represent here English and Hindi. Scale भी आपको लिखना है. स्केल में लिखोगे 100 books equal to 1 unit. And the question is, in which year was the difference in the sale of two language books list? जिसमें कि डिफरेंस जो है वो लिस्ट है. किसमें ऐसा आपको देख के लग रहा है कि डिफरेंस लिस्ट है? तो 2011 में डिफरेंस आपका कम है, बाकी में देखो डिफरेंस ज़्यादा है. बार को देख के ही समझ में आ रहा है, इसमें ऑब्जर्वेशन या काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि 2011 में जो डिफरेंस है वो लिस्ट है. सो आंसर इज 2011. एंड द सेकेंड पार्ट इज, कैन यू से दैट द डिमांड ऑफ इंग्लिश बुक रोज फास्टर, जस्टिफाई योर आंसर. इंग्लिश की बुक की डिमांड बढ़ रही है, ये आपको बताना है. तो इंग्लिश का था रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया था. देखो रेड फर्स्ट में था. इंग्लिश की बुक 2008 में 350 और 2011 में 620. मतलब कितना इंक्रीज हुई सेल. पहले 2008 में 350 बुक सेल हो रही थी और 2011 में 620 बुक सेल हुई. That means yes, increase in sale of English book 620 minus 350 is 170. और अब हिंदी की बुक का ऑब्जर्व करो. 2008 में थी 500 और 2011 में थी 650. दोनों में कितना डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस है 150 का, और इंग्लिश बुक में डिफरेंस है 170 का. इसलिए क्या है कि यस, इसका आंसर होगा यस, इंग्लिश बुक की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ अ कॉलोनी. सर्वे ऑफ अ कॉलोनी. ये एक सर्वे था जिसमें फेवरेट स्पोर्ट्स के पहले क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स. इसमें वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, कितने लोग वॉच करते हैं और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. क्रिकेट को वॉच करते हैं 1240 एंड पार्टिसिपेट करते हैं 620. सेम एज फॉर अदर स्पोर्ट्स. सो ड्रॉ द डबल बार ग्राफ. सेम इसमें भी आपको डबल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. एक्स एक्सिस में फेवरेट स्पोर्ट्स, जो एक्स एक्सिस फर्स्ट है, एक्स एक्सिस पे फेवरेट स्पोर्ट्स, एंड इन वाई एक्सिस नंबर ऑफ पीपल, कितने पीपल है. इसमें भी स्केल हमने ली है. ऑन एक्स एक्सिस 100 पीपल इक्वल्स टू 1 यूनिट. क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स. फर्स्ट क्रिकेट के लिए 1240. तो अब 1200, 100 का डिफरेंस है. 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीन्स 1000, 1100, 1200 एंड 1300. So 1240. 1240 मीन्स आपको जाना है 4th लाइन तक. वैसे ही आपको ग्राफ
फॉर डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के लिए ड्रॉ करना है. एंड क्वेश्चन इज विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स मोस्ट पॉपुलर है. ऑब्वियस है जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है वो है क्रिकेट. क्रिकेट इज मोस्ट पॉपुलर गेम. विच इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग. वॉचिंग ज़्यादा लोग करते हैं और बाकी पार्टिसिपेटिंग. तो ऑब्वियस है वॉचिंग ज़्यादा है. हमेशा देखो वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग, वॉचिंग पार्टिसिपेटिंग. सो वॉचिंग इज मोस्ट प्रिफर्ड. थैंक यू.